Hi, so good afternoon everyone and welcome to this Snap Slot 1 analysis. So just the exam has got over and we have got amazing feedback of the students about the paper. We have got detailed overview of the paper and this is what I'm going to tell you present in this particular video. So please make sure that all of you are watching it till the end and do not forget to hit the like button. Please share it with your friends and also mention your number of attempts and your expected score in the comment section. Yes, guys, are you all ready? Quickly share your experiences. I can see so many students over there present in the chat box. But before that, guys, in case if you're new to my session, this is a bit about myself. So this is your mentor Ronak Shah and I teach quant, LRDI and also prepare students for interview. In fact, I'm glad to share कि कल ही हमने clocks and calendar पूरा किया जिससे 4 क्वेश्चन आए थे. 4 क्वेश्चन परसेंटेज में अगर मैं उसको निकालने जाऊं तो 6.66% of the question were directly from what we discussed yesterday in 1 hour. Right? Do you all agree, guys? Quickly show me a thumbs up if you have been attending my clocks and if you attended yesterday's session, clocks and calendars. Did you feel that was helpful? Yes. Okay. चलो मैं आपको बताता हूँ. काफी सारे स्टूडेंट्स एक चीज कह रहे हैं, quant was difficult. So yes, quant was slightly more challenging, slightly you can say tricky part, and of course certain calculations were lengthy. Which you can't tackle in 1 minute time unless you are just like super fast. Okay, so yes, most of the students have attempted less in quant section, but at the same time VARC was easy. Do you agree with this? Right? Okay, chalo. So guys, what is the overall analysis of the paper? Overall paper को moderate level पे रखा गया है and quant a bit lengthy and difficult too, as most of you would agree. Yes, show me a thumbs up if you agree that quant was difficult, guys. Come on. VARC was easy, definitely, and this is what most of the students have shared. I could talk to about 10 students over call in last 30 minutes. The paper got over at 3 o'clock. Students came out and I started getting calls. I started interacting and got some really amazing insights, and would like to thank all of you who came forward to share the experiences, guys, because this is what will help us in deciding which forms to fill. Because ये सेशन अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि आपको कौन से फॉर्म फिल करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 36 to 37 करेक्ट. ओके अच्छा, आपने अगर 40 अटेम्प्ट किए, बाकी के 20 फ्लूक किए हैं, तो आप वो भी एक फैक्टर इंक्लूड कर सकते हो कि मे बी 1 या 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको. बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, डोंट कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी, बट 1.5 एक्स्ट्रा भी मिल गया. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जैसे लास्ट ईयर 44 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 98.5 परसेंटाइल था 44 मार्क्स पे, तो शायद इस बार थोड़ा सा नीचे जा सकता है. ठीक है. दूसरा, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है. ये फर्स्ट स्लॉट था, तो शायद सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट थोड़े और डिफिकल्ट आ सकते हैं, जो सब लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. राइट, डेफिनेटली दिस विल बी अ लिटिल अर्ली. ओनली व्हेन ऑल द 3 स्लॉट्स आर ओवर वी कैन गिव यू द एग्जैक्ट एनालिसिस. बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो वेल प्रिपेयर्ड थे, उन लोगों ने 47 से लेके 52 की रेंज में अटेम्प्ट किए हैं. So guys, if you have also attempted questions in this range, you are almost in a safe zone. But आपकी accuracy बहुत अच्छी होनी चाहिए. As I always mention, 90% accuracy is what you need, guys. ठीक है. अच्छा, may I please request everyone to hit the like button, guys. सबसे पहले सब लोग like कर दो ये वीडियो को, so that we can keep coming with such videos, such sessions. We are not taking rest on Sunday. है ना. I being in Pune, I could have visited any of the place like Lonavala, Mahabaleshwar and all, but I'm here to help you out to understand the analysis of SNAP. So यार एक लाइक तो बनता है कि नहीं दोस्तों. Yes, so चलो आगे बढ़ते हैं guys. More clocks and calendar question. जैसे अगर आप लास्ट ईयर तक देखोगे तो 2 क्वेश्चन आते थे, शायद इस बार 4 क्वेश्चन थे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के. क्या आप अग्री करते हो? 2 क्वेश्चन क्लॉक के थे, 2 कैलेंडर के थे. गाइस क्या ये सही है? क्योंकि दिस इज द फीडबैक दैट आई हैव गॉट. डू यू एग्री विद दिस? एंड 4 में से 3 क्वेश्चन डूएबल थे, 1 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, जो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. जो आइडेंटिफाई करना था ना स्टेटमेंट, उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट आइडियली नहीं करना चाहिए था. 1-2 ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हो जाते,
बाकी के दो में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना था आपको. सो दिस वॉज द ट्रिक. ठीक है ना. फाइन गाइज. नो आरसी. वंस अगेन देयर वाज नो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई भी नहीं था. एंड एक डीआई का क्वेश्चन था. बाय द वे, हाउ वाज द डीआई क्वेश्चन? आई मीन डीआई क्वेश्चन, वाज इट इजी, मॉडरेट और लेंदी? टफ तो होता ही नहीं है, लेकिन लेंदी क्या कहोगे इसको? इजी, मॉडरेट या लेंदी? एल फॉर लेंदी. क्या कहेंगे डीआई का क्वेश्चन? क्या आप 1-1.5 मिनट में कर सकते थे डीआई का क्वेश्चन? इजी था. अच्छा, सो डीआई वाज डेफिनेटली इजी. ग्रेट. सब लोगों ने एक साथ में कंफर्म कर लिया. गुड. सो गाइज, ओवरऑल एज एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बी स्लाइटली लोअर. कट ऑफ शायद थोड़े से लोअर हो सकते हैं. वंस अगेन गाइज, दिस इज अर्ली, क्योंकि अभी स्लॉट 2 और स्लॉट 3 आना बाकी है. तो विल हैव टू वेट एंड वॉच. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर टेकिंग वन मोर अटेम्प्ट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. All of you would have got the insights, or now you would have understood the trick how to score more in the next particular paper. But मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप मॉक टेस्ट लिखो. जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है ना, वो हमेशा मॉक टेस्ट लिखेंगे. और मुझे नहीं लग रहा है उनको इतना ज़्यादा चैलेंज आया था. बट मैंने काफ़ी सारे मेरे खुद के स्टूडेंट से बात करी जो मेरे साथ रेगुलरली प्रिपेयर करते हैं, एंड दे स्ट्रगल्ड अ बिट, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिखे थे. तो मॉक टेस्ट अगर आपने लिखे होंगे, कम से कम अगर आपने 5-7 मॉक टेस्ट लिखे तो अच्छी बात है. अगर 10 के ऊपर लिखा है तो आई एम श्योर यू वुड हैव सेल थ्रू. क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो तो यू बिकम वेरी कंफर्टेबल, आपकी स्ट्रेटेजी सेटल्ड हो जाती है. तो गाइस, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट से पहले ये गलती मत करना. ठीक है. ओके, चलो. तो गाइस, क्वेश्चन देखे एवरीवन? क्वेश्चन देखे? सर, एलआर के एक पैटर्न वाला क्वेश्चन था, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था. गाइस, कैन यू शेयर दैट एलआर का पैटर्न वाला क्वेश्चन? एवरीवन प्लीज शेयर द क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर. ठीक है, प्लीज शेयर द क्वेश्चंस इफ यू रिमेंबर. एग्जैक्ट डेटा के साथ शेयर करो जल्दी से. सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन याद है तो शेयर करो. मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो ये है गाइस. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ था, फाइंड द डिग्री बिटवीन 10 AM एंड 4 PM. क्या ये क्वेश्चन था? एवरीवन, डू यू अग्री विद दिस? वाज देयर अ क्लॉक क्वेश्चन जिसमें आपको 10 AM एंड 4 PM के बीच में डिग्री निकालना था? सो 10 एंड 4 के बीच में डिग्री कितना होता है गाइस? 4 PM यहां पे होता है, 10 AM ले लो, PM ले लो, क्या फर्क पड़ेगा यार? हाँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? सो गाइज, ये तो डेफिनेटली ऑपोजिट होते हैं ना. अगर आप देखोगे कि ना, से ये दोनों ऑपोजिट होते हैं. 6 घंटे का गैप है, 180 डिग्री, सीधा आंसर हो गया. अब अगर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में, तो आप समझ सकते हो एलआर काफी इजी था. यस, डू यू ऑल अग्री विद दिस गाइस? अच्छा, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट द लाइक बटन. कम ऑन गाइस, चलो फ्यूल डालो. वी नीड फ्यूल. अभी तो हमें बहुत आगे उड़ान भरनी है और अभी भी फ्यूल इतना डला नहीं है. कम ऑन एवरीवन, लेट्स हैव 100 लाइक्स क्विकली. यस, चलो दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं. लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन. हाँ, एक और क्वेश्चन था, 12 एंड 5-10 के बीच का डिग्री निकालो. गाइज, एक और क्वेश्चन था. यस, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फाइंड आउट डिग्री बिटवीन 12, 5, 10. नहीं, डिग्री बिटवीन 12 एंड 5, 10 ऐसा पूछा था आपको. डू यू आर यू श्योर? 12 नून और 12 PM एंड 5-10 PM, क्या ये था दोस्तों? इन दोनों के बीच में डिग्री निकालना था. यस और नो? करेक्ट. तो गाइस, 12 और 5-10 के बीच में क्या डिग्री आएगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों. ठीक है, पर आर हैंड का पूछा होगा, शायद आर हैंड का पोजीशन होगा ना. ये तो आर हैंड का या पोजीशन था या मिनी 10 का पोजीशन था? आर हैंड का होगा मेरे हिसाब से. तो 12 को आर हैंड यहां पे होता है HH, एंड 5-10 को, दिस इज 4 and 5. अब 5 o'clock को आर एंड यहां पे होता है. एंड आपको पता है 60 मिनट्स में या आर हैंड आपका कितना ट्रैवल करता है? 30 डिग्री ट्रैवल करता है. तो कहना है 10 मिनट्स में वो 5 डिग्री ट्रैवल करेगा. तो यहां से वो 5 डिग्री आगे चला जाएगा. तो हमें ये कैलकुलेट करना था 150 डिग्री प्लस ये 5 डिग्री. सो आंसर विल बी 155 डिग्री. यस और नो एवरीवन? अच्छा, शॉर्ट हैंड एंगल पूछा था. वाह रे वाह,
यू नो ऑफ कोर्स यार, आर हैंड लिख दिया होता है, शॉर्ट हैंड लिख दिया, अब इतना तो सबको आता है, ठीक है। चलो फाइन गाइस, कैलेंडर का क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, और कल मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए थे, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था, ठीक है ना। बाकी हमने कल क्वेश्चन किए थे ये सारे, राइट। ओके, जिग्नेश इज शेयरिंग समथिंग 9, 27, 81, 64, 256, 51। अरे जिग्नेश ये कितने लिखा है, ये सही है क्या नंबर्स? गाइज एवरीवन प्लीज वेरीफाई द क्वेश्चन रिटन बाय जिग्नेश। नहीं, पहले ये सीरीज वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। समवन हैज शेयर्ड दिस क्वेश्चन 9, 27, 81, देन 16, 64, 256। ये तो कुछ अलग ही पैटर्न दिख रहा है। देन 5, 125, 5, 125 एंड 625। सो रॉन्ग नंबर क्या है इसमें? रॉन्ग नंबर क्या है? ये एक क्वेश्चन था, क्या ये सही है? एक बार यस लिख दो, फिर हम वो कैलेंडर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। इज इट ट्रू एवरीवन? जल्दी से, मतलब बहुत ही प्यारा पेपर था दोस्तों। जो लोग वेल प्रिपेयर्ड है उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं थी। कौन थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें मतलब बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते आप, जो लिमिटेड टाइम देते हो। 20 में से आपने अगर 12 जितने क्वेश्चन कर लिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया। 12 क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते हो अगर आप VARC एंड LR फुल करते हो, ठीक है। काफी लोगों ने 8, 7, 8 किए हैं या। सो गाइज ये सारे क्या है? क्यूब, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3⁴, देन 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 4⁴, बट ये 5:1, 5 क्यूब, 5:4 है। सो डेफिनेटली दिस हैज टू बी द रॉन्ग टर्म। यू ऑल अग्री विद दिस? एक पैटर्न बन रहा है ना, स्क्वायर क्यूब 4th पावर, स्क्वायर क्यूब 4th पावर, राइट। हाँ, क्वांट में, यस क्वांट में लेंथी थे क्वेश्चन। जैसे वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, 3 लोग ऑल्टरनेट डे काम करते, पहले इसने काम शुरू किया, उसने किया। अरे भाई ये क्वेश्चन कैट वाले पूछते, तुम कहाँ कॉपी करने जा रहे हो कैट को, ठीक है। अब कौन समझाए ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट ने कहा लेंथी था। इज दैट करेक्ट? वो जो 3 लोगों वाला क्वेश्चन था, या यस, ओके, सिलेंडर वाला क्वेश्चन था। ओके गाइस, कमिंग बैक टू दिस वन, टुडे इज सैटरडे, फाइंड द डे आफ्टर 69th डे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 69 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 6, मतलब 6 दिन आगे चले जाओ। सैटरडे को से 6 दिन आगे जाओगे तो फ्राइडे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 7 दिन आगे जाते तो सैटरडे वापस आ जाता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी फ्राइडे। दिस इज द आंसर। या सब लोग सही करके आए हो ना दोस्तों क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है सेकंड एंड थर्ड स्लॉट में इतना इजी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। सो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये फीलिंग आ रहा है कि फर्स्ट स्लॉट इजी ही रखा है, क्योंकि देखो लॉजिक ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स है ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, दे ट्राई टू डिले थिंग्स, राइट। तो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। दिस इज दी एक्चुअल फिलोसॉफी, ग्राउंड लेवल फिलोसॉफी। कहा एक्सपेक्ट क्या किया जाता है उल्टा, बट ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्लॉट के अंदर लोग ट्रायल के लिए देते हैं, एंड दैट इज वेयर सिम्बायोसिस ट्राई टू कीप इट इजी, कि जो स्मार्ट है, जो वेल प्रिपेयर्ड है, वो जल्दी से क्रैक कर ले। नॉर्मलाइजेशन है नहीं इस बार, तो ये हमें ध्यान में रखना था। अरे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन शेयर करोगे प्रांजल? कैन यू शेयर द कंप्लीट ब्लड रिलेशन क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर? फिर मिलके उसको श्योर कर लेते हैं। सर आई शैल, या आई एम कमिंग टू दैट। यस, आई शैल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, या आई शैल डू दिस, आई विल डू दिस। ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज अमेजिंग। आपको या तो पता है या तो नहीं पता है। कोलोक्वियल लैंग्वेज अगर आपको पता है तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट गाइज इसमें एक इनकरेक्ट क्वेश्चन फाइंड करना था। हाँ, ब्रिटिश था गाइज। शेल इज ब्रिटिश, अमेरिकन नहीं यूज करते, शाल कहते हैं उसको। सो दिस इज ब्रिटिश एंड दिस विल इज अमेरिकन। प्लीज गूगल दिस थिंग। थोड़ा हिस्ट्री में डिगअप करना पड़ेगा गूगल में, हर एक चीज अपफ्रंट सही नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कर सकते हो XYZ कॉलेज का पैकेज, सडनली एक वेबसाइट आ जाएगी, वो दिखाएगा ये इतना पैकेज है। गूगल तो खाली वो वेबसाइट का रिजल्ट दिखा रहा है, वो सही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फाइन, अगर आपको वो क्वेश्चन याद आते हैं LR के और सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के, या फिर वो जो फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन था, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल डिस्प्ले इट ओवर हियर, ठीक है।
हाँ वो हो गया अभिषेक, उसका आंसर 155 डिग्री था। अच्छा गाइज ये वाला क्वेश्चन सही है, वर दिस द स्टेटमेंट्स फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो डेफिनेटली 1800 इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज एवरी सेंचुरी ईयर, मैंने कल ही बताया था, एवरी सेंचुरी ईयर विल बी अ लीप ईयर ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 400, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 400। फिर इन अ नॉर्मल ईयर देयर आर 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, तो ये भी सही है। इन अ सेंचुरी ईयर, इन अ सेंचुरी द लास्ट डे कैन नॉट बी ट्यूसडे, गाइज द लास्ट डे कैन नॉट बी ट्यूसडे, क्या ये सही है? इन अ सेंचुरी लास्ट डे कैन नॉट बी ट्यूसडे। हाँ सो देखो अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज ध्यान से समझो, ठीक है? ये बहुत ही लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा बट लॉजिक ऐसा है गाइस, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं सेंचुरी का क्या रहता है। सो ईयर नंबर 1 to 400, ये 400 साल में अगर आप देखो, सॉरी ईयर नंबर 1 to 100, ये 100 साल में देखोगे तो 5 एक्स्ट्रा डे आएंगे, 5 एक्स्ट्रा डे आएंगे, ठीक है? फिर 101 to 200 अगेन 5 एक्स्ट्रा डे, फिर 201 to 300 5 एक्स्ट्रा डे आते हैं, एंड 301 to 400 6 एक्स्ट्रा डे आते हैं। टोटल कितने हो गए? 21 एक्स्ट्रा डेज हो गए, 21 एक्स्ट्रा डेज हो गए गाइज। नेक्स्ट स्टेप में काम में लगेगा, नेक्स्ट स्लॉट में काम में आएगा, याद रख लेना। और इसीलिए 400 साल के बाद कैलेंडर कहा जाता है रिपीट हो जाएगा, एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 21 एक्स्ट्रा डे मतलब क्या हो गया? डिवाइड बाई 7 करो, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 एक्स्ट्रा डे, इसलिए 400 साल के बाद रिपीट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गाइज कि 5 एक्स्ट्रा डे है, मतलब अगर 1 Jan 0001 मंडे था, विच वॉज एक्चुअली मंडे, तो 1 Jan 0100 क्या आएगा पता है? सॉरी 0101 क्या आएगा? सेकेंड सेंचुरी का पहला दिन, 5 दिन आगे चला जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। फिर 1 Jan 0201 क्या आ जाएगा? और 5 दिन आगे चला जाएगा तो वो थर्सडे आ जाएगा। 0301 और 5 दिन आगे चला जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। और 0401 वो मंडे आ जाएगा, वापस 6 दिन आगे जाएगा। तो मतलब 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर लास्ट डे है ना कोई भी सेंचुरी का लास्ट डे, वो या तो फ्राइडे आएगा, या तो वो वेडनेसडे आएगा, या तो वो मंडे आएगा, या तो वो संडे आएगा, वो कभी भी ट्यूसडे नहीं आ सकता। सो लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी अ ट्यूसडे गाइस, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी अ ट्यूसडे। नहीं नहीं, ये सब कैलकुलेट नहीं करना था, ये आपको तो ऑफकोर्स मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको या तो पता है या तो नहीं पता है, बट मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम में काम में लगेगा दोस्तों, सीख लो थोड़ा। अच्छा हाँ, वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, चलो। सो मीनिंग ऑफ कोपियस, एक इंग्लिश का क्वेश्चन था। कोपियस मीन्स प्लेंटीफुल, एबेंडेंट, प्लेंटीफुल, एबेंडेंट, टू मच नहीं कह सकते, प्लेंटीफुल यार, प्लेंटीफुल समझते हो सब लोग, राइट? सो या कोपियस का मीनिंग पूछा था, इजी क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, बिफोर वी गो अहेड, इन केस इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर GDPI, वी आर कमिंग अप विद सर्टेन बैचेस फॉर GDPI preparation, TISNET preparation also. So if you want, you can use my code SHAR10 and you can join Plus or Iconic subscription of Unacademy. Apart from that, guys, I have just started a new batch for 2022 and 23 aspirant. So अगर आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ इंक्वायरी करनी है, तो you can ping me on Telegram at ronak_live and I'll guide you. You can also find me in my Telegram group. So मेरा Telegram group मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो please check description and join my Telegram group. Jignesh and others, if I request, can you please post the group link in the chat box so that others can join? Those who are part of my group, please post the group link. Right, and guys, yes, these are the pricing plan for your quick reference, so keep learning before we take up next question. Iconic subscription में guys आपको IIM का mentor assign किया जाता है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है, पर्सनल स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन मिलता है, एंड पर्सनल डाउट सॉल्विंग मिलता है। उसके अलावा अनअकैडमी इज ऑल्सो प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस मटीरियल एंड दे विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग वन-on-one इंटरव्यूज। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू गेट एडिशनली इन आइकनिक सब्सक्रिप्शन। सो आइकनिक इज मोर लाइक अ कंप्लीट ऑफरिंग। ओके फाइन, चलो गाइज, अभी एक और PNC का क्वेश्चन किसी ने शेयर किया है, बट उससे पहले कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट द लाइक बटन। गाइज अभी तक 100 लाइक्स नहीं हुए यार, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से 100 लाइक्स करो। देयर आर 150 स्टूडेंट्स एंड 100 लाइक्स नहीं हो रहे, मतलब क्या करोगे लाइक्स को अपनी जेब में रख के, ठीक है?
तो जल्दी से खर्च करो गाइज, लाइक्स खर्चने से बढ़ते हैं, पता है ना, लाइक्स और प्यार सेम होता है, प्यार बांटने से बढ़ता है यार, ठीक है, राइट। चलो हाँ वो लेते हैं डिस्टेंस वाला, बॉल बाउंस वाला लेते हैं गाइस। कितने 300 मीटर से ड्रॉप किया था ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हम देख लेते हैं उसको। बट अगेन अगर आपने वो बहुत अच्छे से नहीं किया है प्रोग्रेशन, तो आप वो क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। ये क्वेश्चन याद है सबको गाइस? इज दिस क्वेश्चन करेक्ट? अच्छा इसमें रिपीटिशन करना नहीं करना, क्या क्या करेंगे? सो ऑफकोर्स 2000 से 7000 आपको पूछा है, तो कैन आई से माई स्टार्टिंग डिजिट, माई स्टार्टिंग डिजिट कैन बी 2 और इट कैन बी 4, 5 और 6। सिर्फ एक नंबर साइड में रख देना, 7000 ये साइड में रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2000 से 699 पहले समझ लेता हूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 4 ways, देन दिस कैन बी 8 ways, 8 ways एंड 8 ways, ठीक है गाइज। रिपीटिशन नॉट अलाउड था कि रिपीटिशन अलाउड था? ओ रिपीटिशन नॉट अलाउड गाइज, रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नंबर भी नहीं आएगा। इनफैक्ट यहां पे क्या हो जाएगा फिर, 7 × 6 × 5 हो जाएगा। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ये करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 840 नंबर्स, ठीक है। बिकॉज रिपीटिशन वॉज नॉट अलाउड, तो इसलिए हमें इस तरीके से करना था, है ना, राइट। बट गाइज ये क्वेश्चन इजी था, मतलब ये क्वेश्चन में अगर आप गलती कर रहे हो, यू कांट ड्रीम ऑफ गोइंग टू SIBM काइंड ऑफ कॉलेज। आप ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते यार, ठीक है। चलो गाइज एक क्वेश्चन था, सर्कल दिया हुआ था, उसके अंदर कुछ ट्राइंगल दिया हुआ था, देयर वाज अ ट्राइंगल इनसाइड सर्कल, या देयर वाज अ ट्राइंगल और कुछ एंगल पूछा था, बाहर की तरफ कुछ एंगल पूछा था, ऐसा कुछ था। व्हाट इज द क्वेश्चन, कैन जस्ट टेल मी। मतलब ये ट्राइंगल मैं ले लेता हूं ABC, और एंगल क्या निकालना था, सपोज सेंटर O है, सो इसमें फाइंड क्या करना था, कैन जस्ट टेल मी क्विकली। And what data was given, because I haven't got the data. Sir, I want to watch your linear equation basic lecture for CAT. Please can you guide me regarding your basic lectures? Internship World, attend my 4 PM series. Guys मैं अभी अपना टाइम टेबल दिखाऊंगा, मेरा बेसिक्स ऑफ मैथ्स का फ्री सीरीज चल रहा है, आप सब लोग अटेंड कर सकते हो हर रोज शाम को 4 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो अगर आप चाहो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, अनलॉक करो यूजिंग माई कोड SHAH10 और आप मेरे सारे फ्री सेशन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। Yeah, but can you please tell me this one? Sir, angle in same segment 40 degree. B equal to 40 degree था, 40 inside angle. हाँ, B 40 degree दिया था, और क्या दिया था guys? Extend A to T angle ATC. Extend A to T, हाँ। और आपको ये वाला पूछा था, कुछ ऐसा दिया हुआ था क्या? Right. हाँ ऐसा ही कुछ था, A to D या A to T ऐसे कुछ दिया था। यप। सो गाइज आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट है मेरे लिए विदाउट गेटिंग द क्वेश्चन फाइंड करना, बट हाँ। सो या अभी डेफिनेटली आप कैसे मुझे एक्सप्लेन करोगे, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था, अभी हम उसको साइड में रखते हैं। बट दिस क्वेश्चन, वन बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 300 मीटर एंड इट रिबाउंड्स 4/5। गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP, ठीक है, 4/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब एंड सो एंड सो फोर्थ। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, सो इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R, मतलब 4/5 अपॉन 1 - 4/5। तो गाइज ये कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो एक्चुअली जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। गाइज आई ड्रॉप्ड अ बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 300 मीटर, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड एंड दिस इज 300 मीटर। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉप किया, फिर यहाँ से ये रिबाउंड होके 4/5 हाइट तक जाता है, फिर से नीचे आएगा, फिर से ये इतना जाता है, फिर से नीचे आएगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाता है, राइट। सो अभी मैं क्या करूंगा, इसको x ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 4/5x एंड 4/5x। फिर ये कितना हो जाएगा उसका 4/5, तो 4/5 स्क्वायर x
एंड 4/5 स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। सो गाइज बेसिकली अगर आप ये समेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो x प्लस 2 टाइम्स x इन द ब्रैकेट 4/5, क्योंकि हर एक से अगर आप ये समेशन करोगे तो कितना आएगा, 2x कॉमन ले लो तो 4/5 आ गया। सो 2 टाइम x इंटू 4/5 प्लस 4/5 स्क्वायर एंड सो एंड सो फोर्थ, ये बना। और ये तो हमें पता ही है, दिस इज 4, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 8x आ गया, दैट इज 9x, और x आपको दिया था 300, सो 300 इंटू 9x 2700 आंसर आ गया। टाइम अगर आप देखोगे 60 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। डिज़ाइन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। बट कभी भी 300 ऐसा वगैरह लेके कैलकुलेशन मत करो, x ले लो और फिर लास्ट में वो वैल्यू रख दो, कंफ्यूज कम होगे। तो नेक्स्ट स्लॉट में ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना, इसी से तो एक्यूरेसी बढ़ती है दोस्तों। और मेरा 6 बजे का सेशन हर रोज अटेंड करना यूट्यूब पे, कल भी मेरा 6 बजे सेशन है, पूरी आपकी स्नैप की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। मैं कल एरिथमेटिक का वो पार्ट करा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो सारा ही कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज ज्वाइन मी फॉर दैट। सो दिस इज माय शेड्यूल, बिफोर वी गो अहेड दिस इज माय शेड्यूल, ठीक है। सो गाइज हर रोज शाम को 4 बजे दिस आर फ्री सेशंस। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे साथ बेसिक्स ऑफ मैथ्स कर सकते हो। अगर मैथ्स वीक है, अच्छा करना है, आ जाओ दोस्तों, हो जाएगा, सीमैट तक तो अच्छे से हो जाएगा। 4 to 5:30 PM एंड 6 PM यूट्यूब पे वंस अगेन फ्री सेशंस, जिसमें मैं ये स्नैप सीमैट टिस्नैट की प्रिपरेशन कराता हूँ। कंप्लीट कॉन्ट, कंप्लीट LRDI विल बी टेकन केयर ओवर देयर, ठीक है। यस, ओके। सो गाइज एंड जस्ट वंस अगेन डिस्क्रिप्शन देख लेना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अभी भी आप लोगों ने लाइक बटन नहीं दबाया यार, 200 लोग देख रहे हो, 100 लाइक, यार गब्बर होता तो मतलब क्या ही सोचता, क्या ही करता, बट मैं गब्बर नहीं हूँ गाइज, मैं तो बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी कर लो यार। चलो ये क्वेश्चन का डेटा मुझे बता दो जरा, डेटा मिसिंग, कम ऑन गाइज। हाँ अरे हाँ, पर तुम्हारा नाम तो चेंज करो मिस्टर स्मोकिंग। कमेंट तो पढ़ो, तो कमेंट ऐसे 170 लोग कमेंट कैसे एकदम फटाफट पढ़ ले, बट फिर भी आई एम रीडिंग। और प्रोफाइल नाम थोड़ा ठीक रखो यार, स्मोकिंग वोकिंग क्या रखते हो, ठीक है। सर 551 क्या था, BC इज 1025 10, ओके गाइस। पहला वाला A इंटू B इज इक्वल टू 551 एंड B इंटू C कितना दिया था, B इंटू C कितना दिया था दोस्तों, 1073। इज दिस करेक्ट, क्या ये दिया था, एक बार यस कर लो चैट बॉक्स में। 1073 या 75 था, या ओके। और आपको पूछा था A प्लस B प्लस C, राइट, ओके। सो गाइज यहां पे आपको इसको फैक्टराइज कर लेना होगा। सो इसका फैक्टर क्या आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसका फैक्टर क्या आएगा, हाँ 551। अगर आप चेक करोगे तो ये 3 से नहीं होता है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, क्या 13 से होगा, 13 से भी नहीं होगा, 19, 29 एंड 37, बस यही तो करना था गाइज। सो 19, 29 एंड 37, सो 19 इंटू 29 इज दिस वन, करेक्ट, एंड 29 इंटू 37 इज दिस वन। तो 19 प्लस 29 प्लस 37 करेंगे तो ये आ जाएगा। सो बेसिकली आपके टाइम को वेस्ट करवाने के लिए ये क्वेश्चन रखा था, आपके टाइम को वेस्ट करवाने के लिए क्वेश्चन रख दिया था कि आप धीरे धीरे चेक करोगे यार, क्योंकि नॉर्मली है ना हम 12 तक फटाफट चेक कर लेते हैं, फिर 13, 17, फिर पेशेंस जाने लगता है, फिर पेशेंस जाने लगता है। जैसे आपने अगर ट्रेडिंग आप करते हो, आपने एक स्टॉक परचेस किया, ठीक है, आपने 200 रुपये में परचेस किया, वो 200 का 195 आया, आपने तो भी थोड़ा होल्ड करके रखा, फिर 192 आया, आपने होल्ड करके रखा, लेकिन जैसे ही 190 या उसके नीचे गया ना, अब आपका पेशेंस चला जाता है, आप धाई करके उसको बेच देते हो। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि 190 गया, 179 गया, और फिर वो वापस 200 के ऊपर चला गया था। एग्जैक्टली यही चीज़ आपके साथ एग्जाम में होती है। बीइंग अ ट्रेडर आई कैन शेयर सर्टेन थिंग्स दैट वे। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे बाय द वे।
फिर भी पुष्कर तुम आए तो यहाँ पे ही ना, ठीक है। तुम है ना हर बार यहाँ पे आ जाते हो। तुम आए तो यहाँ पे ही देखो, कोई अनअकैडमी वाला बैजू पे जाके कुछ कमेंट कर रहा है क्या? हाँ, बट हर बार मैं देखता हूँ मेरे सेशन में कोई तो आके, जब वो ग्रेड अप भी हुआ करता था तब भी आके कमेंट करता है और अब भी कमेंट करता है, ठीक है। हर बार जब भी मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ तो अपनी चोंच डालने आप लोग आ जाते हो, तो वही चीज़ दिखाती है कि आप लोग कहाँ पे हो, हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है। चलो अभी वापस आ जाते हैं। या ओके गाइज, एक सेकेंड राइट, जो धनराज ने कहा सब लोग उसका गूगल कर लेना, प्लीज गूगल इट। हाँ गाइज, सही में। तो या अभी सब लोग एक चीज मुझे बता रहे हैं कि वो वाले क्वेश्चन में 2700 आंसर ही नहीं था। क्या इसमें 2700 ऑप्शन ही नहीं था? तो गाइज क्वेश्चन गलत है फिर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है। हाँ, अभी एक सेकेंड, वर्डिंग के साथ में खेला हो सकता है, शायद ऐसा पूछा हो कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन रिबाउंड्स ऐसा पूछ दिया तो 2400 आंसर आएगा। स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस मत कंसीडर करो, ठीक है गाइज। एक सेकेंड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन रिबाउंड्स, अगर ऐसा पूछा तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग का 300 मीटर हटाना पड़ेगा। तो क्या 2400 ऑप्शन में था और ऐसा लिखा था फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन रिबाउंड्स, या टोटल ही पूछा था? ऐसा तो नहीं था ना स्पेसिफिकली इन रिबाउंड्स या ऐसा कुछ। तो फिर गाइस 2700 होना चाहिए। तो मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूं कि स्नैप ने अपनी परंपरा कंपेयर करी, क्योंकि हिस्टोरिकली आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स सिंस 2008-7, ठीक है। हर साल मैं देखता आया हूं स्नैप के अंदर, पहले तो बहुत ज़्यादा गलत आते थे, अभी उन्होंने थोड़ा कम किया है, बट एक दो क्वेश्चन में गलती होती है गाइस। कुछ भी कर लो, 100% पेपर नहीं आता है, ठीक है। ये 100 बात की एक बात है, आप उठा के देख लो गाइस, ठीक है। मतलब पहले तो फिजिकल पेपर मिलते थे ना, पूरे के पूरे मिसप्रिंट रहते थे, ठीक है। और उधर अगर किसी ने उधर वो भी क्लेम भी किया तो वो भी नेक्स्ट डे स्टेटमेंट आता था, देयर वाज नो एरर इन द पेपर व्हाटसोएवर। मतलब हम ही बेवकूफ़ है, ठीक है। चलो सही। वाई आर वी इंक्रीजिंग 4/5 to its square and cube? Because we know the tendency and height of the ball is decreasing. इंटर्नशिप वर्ल्ड, उसके लिए आपको सेशन अटेंड करना पड़ेगा, एपीजीपी करना पड़ेगा, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप प्लीज वो क्वेश्चन कर लेना। हाँ, नहीं बोनस मार्क्स नहीं गए आपके मार्क्स दोस्तों, कोई फायदा नहीं होता है। अगर वो तो बोनस तो तब मिलता है जब कोई एक्सेप्ट करता है कि भाई ये गलती थी, ठीक है, जाओ सब लोगों को मिल जाएगा, बट कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट सी। हेलो, यस, हाँ, आप स्नैप का पेपर लिख के आए क्या? हाँ गाइस, सॉरी, मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट है जो स्नैप का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कहा था कि आप अपना पेपर एक्सपीरियंस शेयर करो, सो आई थिंक समवन वांटेड टू कम लाइव बिकॉज दिस इज अ लाइव एनालिसिस सेशन, ठीक है। या ओके गाइज, एक प्रोवर्ब आया है, नहीं प्रोवर्ब नहीं है। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन, जिल केम ट्रेम्बलिंग आफ्टर। व्हाट इज द कंजंक्शन हियर? एंड नहीं था ऑप्शन में। ऋषिराज, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मतलब समझा नहीं। वाई आर यू क्वेश्चनिंग समथिंग दैट इज कंप्लीटली इरेलीवेंट, ठीक है। हाँ बट गाइज, ये भी गलत था क्या? एवरीवन, डू यू ऑल अग्री विथ व्हाट देवराज नंदी इज सेइंग? एवरीवन, कैन यू प्लीज कंफर्म? क्या एक क्वेश्चन तो सब लोग एग्री कर रहे हैं, 2700 वाले में कुछ इश्यू था। एक और क्वेश्चन है, इंग्लिश के अंदर एक स्टेटमेंट था, जैक फेल डाउन, ठीक है, जैक फेल डाउन
एंड ब्रोक हिज क्राउन। फिर नॉर्मली कॉमा नहीं होगा, सेमीकोलन होगा, ठीक है। जिल केम ट्रेम्बलिंग आफ्टर what is the conjunction here? कॉमा ही था क्या? बट गाइस कॉमा तो मतलब पॉज लेते हो, ये तो पूरा स्टेटमेंट एंड हो रहा है। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन, ये तो एक पूरा स्टेटमेंट हो गया है ना, तो कॉमा कहां पे आएगा? चलो ठीक है, जो भी है। डाउन ब्रोक ट्रेम्बलिंग आफ्टर, ओके। गाइज एक सेकेंड, यहां पे कोई कंफ्यूजन है, प्लीज चेक विथ योर इंग्लिश फैकल्टी। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दिस। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कंजंक्शन तो वैसे एनडी होना चाहिए, अगर कंजंक्शन पूछा है तो एनडी होना चाहिए, बट जैक फेल डाउन क्योंकि ये पूरा एक क्या कहते हैं उसको, इट्स अ क्लॉज, राइट, एंड दिस इज अनदर क्लॉज। ओह सॉरी, लेट मी नॉट यूज टेक्निकल टर्म्स, तो मुझे भी यही लग रहा है, बट या प्लीज चेक विथ योर इंग्लिश फैकल्टी, वर्बल फैकल्टी, दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल यू गाइस, ठीक है। Okay, there is one more question, guys. If I dash magician, I would something. If I meet magician, I would something. Right, guys. एक और स्टेटमेंट आ रहा है, हाँ, कैन यू प्लीज कंफर्म दिस। एक और वर्बल का क्वेश्चन आ रहा है, इफ फिलिंग द ब्लैंक है, इफ आई डैश मैजिशियन कॉमा आई वुड डू समथिंग, मतलब समथिंग मतलब कुछ यहां पे दिया था, तो ऑप्शन में क्या आएगा, मैट या मीट। इफ आई मीट ही होता है ना, सो डू यू ऑल अग्री विथ दिस गाइस? गाइस जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक सेकेंड, दो आई एम नॉट, अरे मैट तो नहीं होता है। देखो एक तो हेड आई मैट होता है, एक तो वो वाला आपका कौन सा, उसको कौन सा मूड कहते हैं, सब्जंक्टिव कहते हैं उसको, इफ आई एम करेक्ट, सब्जंक्टिव है ना। हेड आई मैट, हेड आई डन दिस वन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो भी है, बट हेड आई होता है तो पास्ट पार्टिसिपल आता है, यहां पे इफ आई मीट होता है, सो इफ आई मीट मैजिशियन आई वुड डू समथिंग, राइट। But yes, please check. I'm not sure about this question, guys. I'm not sure about this question. So क्योंकि स्टेटमेंट शायद थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस पास्ट एंड सेकंड पास्ट, ओके। सो गाइज ये एक क्वेश्चन था, बट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। गाइज एक लॉग का क्वेश्चन था, डू यू रिमेंबर लॉगरिथम क्वेश्चन? Does anyone remember logarithm question? Can you please write it? It was an easy logarithm question जिसमें दोनों तरफ सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, दोनों तरफ सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, ओके। सो गाइज फाइन, सो दिस वर द क्वेश्चन। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड 2020 के कट ऑफ क्या थे और 2021 में कट ऑफ क्या हो गए, अब वो देखते हैं। तो गाइज 2020 में लास्ट ईयर 99.85 49 प्लस मार्क्स में था, 45 के आसपास 99 था, 44 पे 98 था, ठीक है। 44 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल था, विच इज द कट ऑफ फॉर SIBM। SIBM का कट ऑफ ये रहता है, एंड 41.75 मतलब अप्रोक्सीमेटली 42 मार्क्स
96 परसेंटाइल था विच इज फॉर SCMHRD। अगर हम ये दो कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, लास्ट ईयर के ये कट ऑफ थे, इस बार के कट ऑफ या इंटर्नशिप, इट्स ओके फाइन, थैंक्स फॉर रिक्वेस्ट टू एवरीवन and everyone, yes it would be great if you can have 200 likes at least, right? but last year के अगर कट ऑफ देखें तो इस बार भले ही मैथ्स थोड़ा ज़्यादा टफ था, but please understand VRC and LR was really easy. Do you all agree with this? So guys, अगर मैथ्स आपने कम किया, ज्योमेट्री का आंसर 60 और 70, ज्योमेट्री के भी 2-3 क्वेश्चन थे, बट अगर मैंने मैथ्स में कम भी किया, कोई सेक्शनल कट ऑफ तो है ही नहीं, मैंने मैथ्स में कम किया, VRC में मैंने अच्छा खासा कर लिया, ओनली देन आई कैन क्लियर द कट ऑफ। सो पता नहीं, मुझे तो शायद यही कुछ लग रहे हैं, कट ऑफ तो इतना जाएगा आपका 43-44 जाता हुआ तो दिख रहा है, बिकॉज एवरी सिंगल स्टूडेंट, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ मोस्टली उन्होंने VRC के आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सबने किए हैं। अब सही कितने होते हैं वो अलग चीज़ है, और LR में सबने 25 में से 22 प्लस तो किए ही है। और क्वांट में अगर आप आपके 20 क्वेश्चन थे, अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 10 तो कम ही हो जाएंगे, आपको 13 प्लस करने होंगे, तब जाके आपका 50 प्लस अटेम्प्ट जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें से 45 करेक्ट कर लेते हो तो आपका 44 नेट स्कोर बनेगा, विच शुड बी गुड इनफ टू गेट द कॉल, कीपिंग इन माइंड कि इट वॉज अ 60 मिनट्स पेपर, 60 मिनट्स का पेपर था, राइट। यस गाइस, व्हाट डू यू फील, मतलब ओवरऑल क्या आपको ऐसा लग रहा है कट ऑफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सेम रहेगा? माई फीलिंग इज या तो सेम रहेगा या तो ऊपर जा सकता है अभी के लिए, बट स्लॉट 2 स्लॉट 3 देखना होगा। अगर स्लॉट 2 स्लॉट 3 अनरीजनेबली टफ आ गया, मतलब जैसे VRC, कौन तो डेफिनेटली इतना ही आएगा, लेकिन VRC और LR अगर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया तो ओवरऑल कट ऑफ नीचे जा सकते हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोगों ने स्लॉट 1 में अच्छे से पेपर लिखा है गाइज, आई थिंक आप शायद ये सोचोगे, आप 1 महीने बाद भी लिखोगे ना तो भी आप ये सोचोगे कि मेरा स्लॉट 1 का स्कोर बेटर आएगा, नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है, राइट। सो गाइज, मुझे इसके आसपास ही 2021 के स्कोर लग रहे हैं, कोई ज़्यादा अभी मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, शायद इससे ज़्यादा जा सकते हैं अगर स्लॉट 2 स्लॉट 3 भी ईजी आए तो, ठीक है, फाइन। कट ऑफ मैंने आपको जैसे बताए, SIBM 98, SCMHRD 96, जैसा कि आपको पता है कल ही SIBM पुणे एंड SIBM बैंगलोर का भी डेडलाइन ओवर हो गया है, तो अभी आप टारगेट कर सकते हो SCMHRD विच इज 7 जैन। गाइस 7 जैन से पहले SCMHRD भर देना अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो, या ठीक है। शेल ब्रिटिश विल अमेरिकन, हाँ यार ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। ओके गाइज, इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, प्लीज ज्वाइन मी, ज्वाइन माई प्लस बैच फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ वहाँ क्यों अटेंड करना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने कहीं पे भी एनरोल नहीं किया है गाइज, कम एंड प्रिपेयर विथ मी ऑन अनअकैडमी, यू विल गेट गाइडेंस, यू विल गेट मच मोर लर्निंग देन एनी अदर कोचिंग अकेडमी। कैसे? एवरी सिंगल स्टूडेंट हु इज लर्निंग विथ प्लस, राइट, अभी काफ़ी लोग 40-50 तो यहाँ पे लाइव है, उसमें ये है, वो लोग मेरे साथ हर रोज़ 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। यार कहाँ पे एक फैकल्टी आपको 3 से 4 घंटा हर रोज़ हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस कराएगा, ये सोचो, क्योंकि अनअकैडमी का जो मॉडल है उसमें आप फैकल्टी से सीधे जुड़ते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं लग रहा है कि आप फैकल्टी के साथ एनरोल करते हो, आप वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करते हो, राइट। सो दिस इज माई अपील टू एवरीवन कि कम एंड ज्वाइन मी ऑन प्लस इफ यू आर टारगेटिंग 2022 और 23, ठीक है। एंड बाकी तो आप ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स वगैरह कर ही सकते हो, मेरे जो फ्री सेशंस है वो तो अटेंड करते ही रहो, या एंड आई विल कीप कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस गाइस। कल हम मिलेंगे 4 बजे बेसिक्स ऑफ मैथ्स, फिर 6 बजे स्नैप सीमैट CET सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई होप ऑल ऑफ यू हैव फाउंड दिस प्रीटी फ्रूटफुल, कीप लर्निंग गाइस, राइट। एंड दिस आर द URL फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस माई फ्री वीडियोस एंड लेक्चर नोट्स भी यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। ओके, so that's it guys, time to say adios.